friends, welcome to our channel Physics by ITNs. Here we will provide previous year questions and also some basic concepts. Uh, Before going through the channel, let's subscribe, like and share this channel. Here we are discussing today TIFR questions that has been asked in previous years. The first question that I am taking, here a square wave is put as an input to the RC combination and we want to find the voltage across the capacitor or the output voltage. If we are putting input voltage IT and want to calculate VT through a RC combination circuit, so what will be the output? This is the question, and the similar question has been asked 2 times in the TIFR just by switching the R and C positions. In first year it was R here, C here, and in another year C was here and R was here. So we will understand how to deal with such type of questions. So here a square wave is there, and what will be the output? So there are 2 types of combinations. One is integrator type that we have already discussed in op-amp based circuits. So if there is R here and C in the feedback, it is called an integrator. And if we switch the positions, C here, R here, then it is called a differentiator. The similar combination without a op-amp is like this: R here, C here, it is called an integrator. C here, R here is a differentiator. Then what will be the output if we consider different types of waveforms? Suppose if we take a delta waveform and we pass it through a integrator, then the integrator will integrate this delta function and give us a square wave. And if square wave is given to an integrator, then it will be transformed to a triangular wave. And if triangular wave is given to an integrator, then it will be a parabolic wave. Delta to square to triangle, then finally to the parabola. And if again we give this parabolic form to our integrator, it will transform into a something cubic form. So this is a general form that integrator will transform a delta to square, square to triangle, and a triangle to parabolic. And if we do the reverse process, because integration and differentiation are the reverse of each other, then we came back to our original delta function. Parabolic, if it is differentiated, we will get a triangular. Triangular is differentiated, we will get a square. And if a square wave is differentiated, we will get a delta function. So in this question, a square wave is given to this input. We can recognize that R is here, C is here, then it is an integrator circuit. And if we give this delta function to an integrator, we will get a triangular wave. So our answer will be D. So this was the answer. And if the same question was here and we switch this waveform by C here and R here, then it is an integrator or differentiator. And if we pass a square wave to a differentiator, then our answer will change to a delta function. There is no option here. So suppose this is a delta function, so then answer will be A. So we have to check whether the C position is here or here. The location of C and R will decide which type of circuit it is. If it is an integrator, then we have to deal with the integrator type of combination, and if it is a differentiator, then our output will be like a differentiator. Differentiator, as you know, if it would have been a sine wave, then the differentiator or integrator will transform it to the cosine wave or minus cosine wave, depending on what it is. Because the differentiation of sine t will be cos t, and the integration of sine t will be minus of cos t. So we have to consider the phase difference accordingly. Whether it is integrator, then we have to take the sign minus sign, and if it is a differentiator, then already only cos t will be there. So we have to take this. So thank you. So friends, इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में आएंगे, चाहे वो ओपन रिलेटेड सर्किट हो, चाहे वो सिंपली आर एंड सी कॉम्बिनेशन का सर्किट हो, तो आप सिंपली इस सर्किट को रिकॉग्नाइज करके उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है. ये टीआईएफआर का क्वेश्चन है, वैसे कि ऐसे क्वेश्चंस नेट जेआरएफ में भी पूछे गए हैं. सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. ऐसे ही और क्वेश्चंस हम अभी डिस्कस करेंगे. हेलो फ्रेंड्स, ये बीजेटी रिलेटेड क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर टीआईएफआर में पूछा गया है.
यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है, 330 किलो ओम का, 100 किलो ओम का, जो कि बेस के साथ में कनेक्टेड है। फिर यहाँ पे एमीटर रेजिस्टेंस है 51 किलो ओम और एक कलेक्टर रेजिस्टेंस है 150 किलो ओम का। इन सबको एक बाइसिंग वोल्टेज 10 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर ग्राउंडेड है। जो बेस टू एमीटर वोल्टेज है वो 0.7 वोल्टेज दी गई है। बीटा इसका बहुत हाई है, वेरी हाई बीटा हमें लिया हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे हम यूज करेंगे ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमें बेस के जो रेजिस्टेंसेस हैं उन सब का एक थेवेनिन इक्विवेलेंट कंसीडर करना होता है। थेवेनिन इक्विवेलेंट के लिए हम देखिए दो रेजिस्टेंसेस हैं, यहाँ पे वोल्टेज निकालनी है। यहाँ की वोल्टेज हमारे पास पता है वो 10 है, यहाँ पर ग्राउंड है। तो सबसे पहले हमें VV निकालना है। तो VV क्या होगा, इस 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो उससे हम कह सकते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल से 100 अपॉन इन दोनों रेजिस्टेंसेस का सम मल्टीप्लाई बाय आपकी जो सोर्स या फिर बायसिंग वोल्टेज है। तो VV को आप कह सकते हैं 100 अपॉन 100 प्लस 330 मल्टीप्लाई बाय 10। तो आपकी जो बेस वोल्टेज है वो आ जाएगी 100 अपॉन 43 वोल्ट। उसके बाद अगर हम इसका बेस रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो हम इन दो रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, वो हमारा RB हो जाएगा। तो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय इन दोनों का सम, तो ये आ जाएगा 3300 डिवाइड बाय 43 किलो ओम। तो ये जो रेजिस्टेंसेस लगे हुए थे इस सर्किट में, इन सबको हटा के हम इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, सिंपली एक वोल्टेज VV और एक रेजिस्टेंस RB। बाकी का सर्किट हमारा एज इट इज है, रेजिस्टेंस एट द एमिटर, रेजिस्टेंस एट द कलेक्टर। अब जब हमें इनपुट सर्किट को देखेंगे तो हम इसमें एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि देखिए बीटा हमारा बहुत हाई है, तो वेरी हाई बीटा होने की वजह से जो हमारी बेस वोल्टेज है वो अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगी, और बेस वोल्टेज के 0 होने की वजह से जो एमिटर और कलेक्टर करंट है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम जब यहाँ पे KVL लगाएंगे तो इसके अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि करंट 0 है, तो करंट 0 इंटू RB, तो वो 0 फैक्टर हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन आएगी VV जो कि हमारा 100/43 है, तो हमने लिखा 100/43 माइनस ये 0.7 वोल्टेज ड्रॉप हुआ माइनस 51 K इंटू IE एमीटर करंट। इसको सॉल्व करने से हमें एमीटर करंट मिल जाएगा जो कि आएगा 31.87 माइक्रो एम्पियर। हमारा एमीटर करंट और कलेक्टर करंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, क्योंकि बीटा हमारा हाई है, तो हमें कलेक्टर करंट भी मिल गया। नेक्स्ट हम KVL लगा सकते हैं आउटपुट लूप में। यहाँ पर अगर हम KVL लगा रहे हैं तो हमें पता है कि इन दोनों वोल्टेजेस का जो डिफरेंस है वो हमें करंट इनटू रेजिस्टेंस दे देगा। तो हमने सिंपली KVL लगाया 10 - 150 IC = VC। एक्चुअल में हम सर्किट में पूछा गया है कि जो कलेक्टर वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या है, तो ये हमने KVL लगाया। यहाँ से हम IC हमें ऑलरेडी पता है, तो VC कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा VC आ जाएगा 5.218 वोल्ट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते थे। हमें सबसे पहले सिंपली थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकालना था इसका, और उस थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट के बाद ये वोल्टेज मिल जाती है, ये रेजिस्टेंस मिल जाता। फिर हमें यहाँ पे KVL लगाना था। KVL लगाने से हमें करंट की वैल्यू मिल जाती। अगर बीटा दिया होता, मान लीजिए अगर कहा जाता कि बीटा हाई की बजाय कुछ वैल्यू दे देते, मान लीजिए 150, 100 कुछ भी, तब आपको एक फैक्टर यहाँ पे एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है। तो इस इक्वेशन में एक टर्म आ जाता माइनस RB इंटू IB, तो बेस करंट का एक टर्म आ जाता। तब इसमें बेस करंट और एमिटर करंट दोनों ही इंक्लूडेड है सेम इक्वेशन में। तब आपको लिखना पड़ता कि जो एमिटर करंट है उसको लिख सकते हैं बीटा प्लस 1 टाइम्स बेस करंट, और इस तरीके से आपका इक्वेशन आसानी से हो जाती है। अगर ये टर्म नहीं है तो सिंपली आपका एमिटर के टर्म में ही है पूरी इक्वेशन, तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये इक्वेशन भी हो तो आप इसको यूज करके एमिटर करंट को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, तो बेस करंट आ जाएगा। फिर बेस करंट से कलेक्टर करंट निकाल सकते हैं यूजिंग द इक्वेशन IC = बीटा IB। जो कलेक्टर करंट है वो बेस करंट टाइम्स बीटा होता है, ये बीटा हमारा करंट गेन है। तो फिर से हमारा IC निकल जाएगा, और फिर सेम इक्वेशन जो हमने आउटपुट लूप में लगाई है वही लगाएंगे, तो हमारा VC निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन हम आगे भी डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।